हाँ बेटा, ये दिस इज तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया 2 से, तो दिस इज 2 sin x इंटू कोस एक्स, दैट इज sin 2x, एंड sin 2x का कैसे इंटीग्रेशन होता है हम फर्स्ट एक्सरसाइज में चेक कर चुके हैं। तो 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस c। तो देयरफॉर दिस वैल्यू बिकम -1/4 cos of 2x प्लस c। दिस इज योर थर्ड आंसर। तो ऑल द थ्री आंसर आर करेक्ट, all the three results are correct. So it's on your choice, you have to go with any one in your test or in your exam, any one method. Now let's start again this 7.2 exercise with the question number. I hope you can go with question number 6 up to 6, you can do it. Now question number 7 and 10th question, 10th 11th, all these questions you have done in your 7.1 exercise also, but now we can do all these questions with substitution method. So this question number 7 is suppose karo, the statement is given to us, question number 7, that is x into under root of x plus 2, and already you have done this question in your first exercise 7.1. वहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे x plus 2 है, तो आप बाहर भी x plus 2 बना लो, इसमें 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो दीज आर टू मेथड्स, मैं फिर से बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड इज दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। हियर इट इज x plus 2 raised to power 1/2। तो बाहर x है बेटा, इस x को भी बिल्कुल सेम नंबर में कन्वर्ट कर लो जैसा पावर के अंदर रहता है, x plus 2 और -2 लाइक दिस इनटू dx। नाउ मल्टीप्लाई दिस x plus 2 raised to power 1/2 with these two numbers, so it become x plus 2 raised to power 3/2 minus 2 into x plus 2 raised to power 1/2 into dx. So therefore this integral is now it is ax plus b raised to power n. So therefore x plus 2 raised to power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1 into coefficient of x, but by chance coefficient of x is 1. So -2 into x plus 2 raised to power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 and plus c. That's your answer. You can simplify it. Second method, which is by substitution, जो substitution से होगा, that method is बेटे 1/x under root x plus 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हम आगे। तो जो पावर के बीच में है, चाहे पावर 1/2 है, 7/2 होती, 100 होती, 200 होती, whatever it is, उसे आप t के इक्वल पुट कर दो। पुट t इक्वल टू x प्लस 2। मैं अभी एक और क्वेश्चन लेके दिखाएंगे, उसमें पावर कुछ और बदल लेंगे। तो t इज x प्लस 2 इज इक्वल टू t, देन व्हाट इज x? x इज इक्वल टू t माइनस 2, बिकॉज x इज देयर, तो वी हैव टू पुट हियर t माइनस 2। एंड नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx हो जाएगा एंड दिस इज dt। देखो ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, इधर dx अपॉन dt होगा। So therefore dt is equal to dx. So these 3 things are important here. हमने t को x plus 2 पुट किया, x की जगह t minus 2 पुट करेंगे, this is under root of t, और dx की जगह dt। And now we can multiply this under root t with this one, so it become t raised to power 1, t raised to power 1/2, so t raised to power 3/2 minus 2 into t raised to power 1/2 into dt। तो बेटा एक्चुअल में ये यही बना, देखो जरा ध्यान से, t raised to power 3/2, this is x plus 2 raised to power 3/2, 2 into t raised to power 1/2, this is 2 into x plus 2 raised to power 1/2, because t is nothing but x plus 2, so these two are same, but यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, यहाँ पे हमने बगैर सब्स्टिट्यूशन के कर लिया। तो देखिए, तो t raised to power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1 और -2 into t raised to power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 plus c. Now put values of t here. Put values of t here, so you will get the same answer जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। Okay? नेक्स्ट वन बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। 8, 9, 10 ऐसे ही हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। 11th क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। इट्स लाइक दैट, x डिवाइड बाई अंडर रूट x प्लस 4। तो अगेन वी कैन गो विद टू मेथड। फर्स्ट इज 7.1 एक्सरसाइज का जो मेथड है,
यहाँ अंडर रूट में x+4 है तो ऊपर भी हम +4 -4 कर लें, दैट इज फ्रॉम 7.1 एक्सरसाइज, और 7.2 का करना है तो x+4 को हम t पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू x+4। तो यहाँ से बेटे x की वैल्यू हो जाएगी t-4, जो हमारा x है उसकी जगह t-4, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू dx। तो देन दिस क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ t, x की जगह t-4 इंटू dx जो लिखा है उसकी जगह dt लिख देंगे। तो देयरफॉर t रेज़ टू पावर t अपॉन t रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन t रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखता है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx किया उसने, ध्यान दे जरा। तो अगर यहाँ पे बेटे वो x की पावर 5 ना करता और x की पावर 2 कर लेता, पावर 5 किया उसने, x की पावर 2 करता, तो दिस क्वेश्चन बिकम 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि हम x³ - 1 को t पुट करते तो x³ का डेरिवेटिव x² हो जाएगा। देखो ऐसे करते हैं हम, t इक्वल टू x³ - 1, तो dt इज 3x² इंटू dx। तो x² इंटू dx है, मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर x² इंटू dx, यहाँ पे 3 को इधर dt अपॉन 3 भी कर सकता हूँ। दो चॉइस होती है हमारे पास, या तो यहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या फिर यहाँ से एडजस्ट कर लो, इट इज ऑन यू, ये तुम्हारे ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे कर सकते हो dt अपॉन 3x² इंटू dx। तो देन दिस क्वेश्चन बिकम t रेज़ टू पावर 1/3 इंटू x², दिस इज dt अपॉन 3। तो बेटा 1/3 और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कर दो, 1/3 प्लस 1, t रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1 और प्लस t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर है। ये तब होता अगर यहाँ पे x की पावर 2 होता, लेकिन अब यहाँ तो x की पावर 5 भी है, तो 5 का क्या करें, x की पावर 5 है बुक में आप देखेंगे, तो दिस इज x रेज़ टू पावर 5। तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, x³ - 1 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 को x³ इंटू x² इंटू dx ऐसे तोड़ लेंगे। जो x की पावर 5 है दैट कैन बी रिटन एज x³ इंटू x² इंटू dx। और अब हम सेम सब्स्टिट्यूशन यही लगाएंगे, पुट t इक्वल टू x³ - 1, ये हो गया t, लेकिन अब मुझे x³ का भी देखना होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ से t प्लस 1 इक्वल टू x³, ये -1 इधर आके t प्लस 1 हो जाएगा x³ की वैल्यू, और डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, तो dt इक्वल टू दैट इज अगेन सेम 3x² इंटू dx। तो dt अपॉन 3 इक्वल टू x² इंटू dx। तो ये मेरा x² इंटू dx का भी देखो सभी का हो गया, x² इंटू dx दिस वन dt बाई 3, x³ की वैल्यू t प्लस 1 और x³ प्लस 1 की वैल्यू t, ऑल वी हैव डन। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज t रेज़ टू पावर 1/3 x³ that is t plus 1 into x² into dx that is dt divided by 3, it's like this। अब आप ये 1/3 बाहर ले लें और t रेज़ टू पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 इंटू 1, तो दिस इज t रेज़ टू पावर 4/3 प्लस t रेज़ टू पावर 1/3 इंटू dt। और अब इसको इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ, कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल। जो जो प्रॉब्लम रहती जाती है उन्हें टिक करते जाना, तो हम डाउट सेशन में उन सब प्रॉब्लम्स को ले लेंगे। अगर आपने निशान लगा रखे होंगे तो इजी टू फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, उनको हम जल्दी से स्कैन कर सकेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो 16, 17 हो जाएगा बेटा, 18 क्वेश्चन ऑलरेडी हैव डन। तो 19 क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन, इट इज गिवन टू अस e रेज़ टू पावर 19 और 20, 19 और 20 बोथ आर सेम, तो पहले 20 लेते हैं, 20 पहला पार्ट है, उसके बाद 19 करेंगे। पहले 20 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, दिस इज e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू dx। इसको बेटा इंटीग्रेट करिए, तो आप चेक करो पुत्र, एक क्वेश्चन में इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके। सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है cos x डिवाइड बाई sin x इंटू dx।
यहाँ पे दो फंक्शन है, कोट एक्स भी लिख सकते हो आप इसको, बट मैंने जानबूझ के कोस अपॉन साइन लिखा है। अभी भी इससे पहले मैंने यही क्वेश्चन किया था साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से आपको करके दिखाया। आप साइन एक्स को टी पुट कर सकते हैं तो डी टी कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स। आप कोस एक्स को टी पुट कर सकते हैं तो डी टी में साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं, बट क्या वो दोनों मेथड यहाँ भी एप्लीकेबल हैं? क्या हम यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट कर सकते हैं और फिर कोस एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो लेट्स ट्राई टू इट। पहले हम टी पुट करते हैं साइन एक्स को, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी हो जाएगा बेटे कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो 1/t इंटू डी टी, एंड आंसर इज log ऑफ टी। तो log ऑफ टी प्लस सी, दैट मीन्स log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज डन, हो गया हमारा। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, वी हैव डन इट। तो इज इट पॉसिबल कि हम इसको ऐसे भी कर सकें? इज इट पॉसिबल? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स है, क्या हम टी कोस एक्स को पुट कर सकते हैं? तो अगर कोस एक्स को टी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और आप चेक करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स के साथ में साइन एक्स कहीं मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। देखो, दिस इज कोस ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। डी एक्स के साथ साइन एक्स नहीं है, डी एक्स के डिवाइड में साइन एक्स है, तो दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल। ओनली वन केस इज देयर, यही पॉसिबल हो सकता है, दूसरा पॉसिबल नहीं है, जबकि इस क्वेश्चन में दोनों चीज पॉसिबल है। तो बी केयरफुल इस तरह की चीजों को अप्लाई करना। अब यहाँ जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, दैट इज सेम। यहाँ अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दे तो न्यूमरेटर इसका डेरिवेटिव है, और न्यूमरेटर को टी पुट कर दे तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन आता है कि किसको टी पुट किया जाए? सिर्फ डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ये ध्यान रखना बात को। तो इट मस्ट बी लाइक दिस, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। जो डेरिवेटिव है दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद डी एक्स। तो हम इसे टी पुट करेंगे बेटा, न्यूमरेटर को टी नहीं कर सकते। तो पुट टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस माइनस सॉरी ई रेज टू पावर माइनस 2x। हमने डिनोमिनेटर को टी पुट कर दिया। व्हाट अबाउट डेरिवेटिव डी टी? ई रेज टू पावर 2x इंटू 2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 एंड इंटू डी एक्स। ये एक्चुअल में ऐसे होता है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स होता है। तो मैं डी एक्स को उधर ले, थोड़ा ठीक कर लो। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ई रेज टू पावर 2x और माइनस मिलकर प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो चेक करो बेटा, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, दिस इज डी टी। ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इट इज ऑन योर चॉइस, या तो 2 यहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नहीं तो फिर डी टी अपॉन 2 कर सकते हो, डी टी अपॉन 2। मैं तो बेटर रहता है ऐसे ही कर देता हूँ, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, झगड़ा खत्म। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल बिकम 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1 अपॉन टी इंटू दिस होल पार्ट इज डी टी, ये पूरा पार्ट डी टी है। तो दैट्स वाई दिस इज 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी, टी मीन्स e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस। एग्जैक्टली सेम 19 क्वेश्चन क्या कहता है? 19 उसमें लिखा है उसने e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1 लिखा है। तो अब गड़बड़ हो रही है। इफ यू पुट दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं t को डिनोमिनेटर पुट कर देता हूँ e रेज टू पावर 2x प्लस 1, तो डेरिवेटिव में e रेज टू पावर 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स आता है, बस प्लस 1 नहीं आता, प्लस 1 नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या कर सकते हैं हम चेंज? ये ऐसे का ऐसा नहीं हो सकता, इसकी शक्ल भी हमें ऐसे बनानी पड़ेगी। इसमें आप चेक करो, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, पावर सेम है नेगेटिव साइन के साथ, और एक बार न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है। उल्टा भी हो सकता था, ऊपर माइनस हो जाता, नीचे प्लस हो जाता। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे अलग अलग साइन है। इधर e की पावर 2x है, लेकिन यहाँ पे कोई पावर नहीं है बस, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू हियर,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। देखो क्या होता है, e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू 1 अपॉन e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x। इट्स लाइक दिस। So then it become e raised to power x minus e raised to power minus x और e raised to power x plus e raised to power minus x into dx। चेक करिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बना जैसे हमारा 20th क्वेश्चन है, इस करके मैंने 20th पहले कराया। अब इसको अब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t पुट कर लेंगे एंड रेस्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो t e raised to power x plus e raised to power minus x and then find dt and do it। कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन। ओके, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 23 वी ऑलरेडी डन इट, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, यू कैन डू इट। 24 में डिनोमिनेटर टी पुट करेंगे। 25 में जो कोस के एक्स है 1 अपॉन कोस के एक्स, उसको आप ऊपर ले जाओगे, सीकेंड के एक्स बना लेंगे। देखिए जो 25 क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन कॉस के एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट के एक्स है। ये 1 माइनस टेन एक्स का होल स्केयर, 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्केयर इंटू डी एक्स। तो बेटे टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स होता है, तो हम इसको ऐसे कर लें 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्केयर और कोस स्केयर को ऊपर ले जाएंगे तो दिस इज सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ पुट t इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो उसे साथ ले लेते हैं, और माइनस टेन एक्स, दिस इज माइनस सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ सिंपल सीकेंड स्केयर एक्स, इट इज बेटर टू राइट माइनस एंड माइनस। प्रॉब्लम सॉल्व। तो 1 माइनस टी रेज टू पावर 1 बाई 2 इंटू डी, सॉरी टी रेज टू पावर 2 इंटू डी, दैट्स ऑल। नाउ यू कैन डू इट। 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9th भी हो जाएगा। 29th में 29th क्वेश्चन दैट इज सिंपल, जस्ट डेरिवेटिव की अगर अच्छी प्रैक्टिस है हमारे तो वी कैन डू इट सिंपली। कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो इट इज ऑन योर चॉइस कि हम किसे टी पुट करें, कोट एक्स को टी पुट करें, लॉग साइन एक्स को टी पुट करें, दोनों मल्टीप्लाई में। अगर हम कोट एक्स को टी पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव कोसिकेंड स्केयर वो नहीं है यहाँ पे, तो देन वी ट्राई टू लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स सॉरी। तो अगर मैं लॉग ऑफ साइन एक्स को टी पुट करता हूँ, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो डेरिवेटिव इज 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कोस एक्स इंटू डी एक्स। इट मीन दिस इज कोट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारी बात बन जाती है। तो दैट देयरफॉर वी कैन राइट दिस लाइक एज लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस पार्ट इज टी, दिस पार्ट इज डी टी। तो देयरफॉर दिस वन टी इंटू डी टी, और बाकी आप कर लेंगे। बस हमें यही सिलेक्शन करना होता है कि t किसे रखें और dt। 38 हो जाएगा बेटे, 31 हो जाएगा, 32 और 33। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32 और 33 ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ दोनों को। 32 और 33 में से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 32 और 33 बोथ आर सेम, दोनों ट्राई करना। हम 32 ले रहे हैं, तो दिस इज 1 ओवर 1 प्लस कोट एक्स है। यहाँ पे 1 प्लस कोट एक्स है। 33 में 1 माइनस टेन एक्स है। यहाँ पे 1 प्लस कोट की बजाय 1 माइनस कोट हो सकता है, और उसमें 1 प्लस टेन और 1 माइनस टेन हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअल में ऐसे। 1 प्लस कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। 4 क्वेश्चन है, चारों के 4 आइडेंटिकल हैं। कैन ट्राई। तो व्हाट वी कैन डू हियर, इनको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करो। तो 1 ओवर 1 प्लस कोट एक्स दैट इज कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा नीचे साइन एक्स एलसीएम ले लो। तो साइन एक्स एलसीएम ले लिया, तो दिस इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये साइन एक्स ऊपर ले जाओ, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिए एक फॉर्म तो क्वेश्चन की ऐसे हो सकती है, तो मैं ऐसे दिया जाए 1 ओवर 1 प्लस कोट एक्स,
एक क्वेश्चन की फॉर्म ऐसे हो सकती है कि इस तरह से दिया जाए sin x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। ऊपर sin x है, नीचे sin प्लस cos है, तो ऊपर cos x भी हो सकता है, नीचे फिर sin प्लस cos होगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट होगा। व्हाट वी कैन डू हियर, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बिकम 2 sin x डिवाइड बाई 2 sin x प्लस cos x। जो कांस्टेंट नंबर है वो आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो, वेरिएबल नहीं रख सकते हम कभी भी। ना 1/2 जो ऊपर बेटा sin 2 sin x है, उसे हम ऐसे लिख लें sin x प्लस sin x, 2 बार करके लिख लें, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज sin x प्लस cos x इंटू dx। नाउ सी द डिनोमिनेटर पार्ट, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसे चेक करो। दिस इज sin x प्लस cos x, तो मैं न्यूमरेटर में भी यही चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो इसमें आप cos x अपनी तरफ से ऐड करो और cos x को अपनी तरफ से ही सेपरेट करो। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने cos x ऐड किया तो cos x सेपरेट किया, दिस इज सेम, ठीक रह जाता है। नाउ सेपरेट दिस, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x 1 प्लस sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x इंटू dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू, इसको अलग से sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x इंटू dx, और इसमें भाई डिनोमिनेटर को t पुट कर दो, इस डिनोमिनेटर को t पुट कर दो, तो पुट t इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो dt की वैल्यू आती है बेटे साइन की डेरिवेटिव cos x और प्लस cos का होता है माइनस sin x इंटू dx। देखो ध्यान से, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा उल्टा हुआ है, साइन माइनस cos है, हमारा cos माइनस साइन आ रहा है, तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो दिस वन इज माइनस को कॉमन लेंगे तो sin x प्लस का हो जाएगा और cos माइनस का, तो देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, तो इसको आप माइनस dt लिख सकते हो, sin x माइनस cos x इंटू dx, तो ये तुम्हारा हो जाता है काम। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल बिकम 1/2x माइनस 1/2 प्लस लिख लो, चलो 1/t इंटू dt की जगह माइनस dt, तो देयरफॉर 1/2x माइनस 1/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा और t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें। नाउ इट्स ओवर, तुम्हारी 13.7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। यू हैव टू डू इट एंड फाइंड आउट, जो भी इसमें डाउट्स रह जाते हैं उनको फाइंड आउट कर ले, वी विल डिस्कस ऑन लाइव सेशन। ओके बेटा, ओके।